وہ ہمارے گھر کے پاس رہتی تھی۔ اس کو بیوہ ہوئے 3 سال ہو چکے تھے اور اس کا 12 سال کا ایک بیٹا تھا۔ وہ بہت ہی سادہ مزاج اور غمگین رہنے والی عورت تھی جو چپ چاپ سر جھکائے اپنا کام کیے جاتی تھی۔ میں اپنی نوکری میں چونکہ مصروف رہتی تھی اس لیے اس کے ساتھ زیادہ بول چال نہیں تھی، مگر پھر میرے شوہر نے مجھے کہا تھا کہ میں اس عورت کا خیال رکھوں اور مجھے اس کے گھر گاہے بگاہے چکر لگاتے رہنا چاہیے۔ تب میں نے بھی سوچا کہ میرے شوہر صحیح کہتے ہیں، مجھے اس عورت کے پاس جانا چاہیے، اس کی داد رسی کرنی چاہیے، ہو سکتا ہے اسے کسی مدد کی ضرورت ہو۔ اور تب میں نے اس کے گھر چکر لگانا شروع کر دیے تھے۔ وہ بہت مظلوم عورت تھی اور اپنے بیٹے کے ساتھ بڑی مشکل سے گزارا کر رہی تھی۔ شوہر کی وفات کے بعد سب خاندان رشتہ داروں نے اس سے ہاتھ کھینچ لیا تھا، تبھی مجبوراً اس کا بیٹا اس چھوٹی سی عمر میں روزگار کمانے کو نکلا ہوا تھا۔ مجھے یہ سب دیکھ کر بہت دکھ بھی ہو رہا تھا کہ ہمارے معاشرے میں بیوہ عورت کی زندگی کس قدر مشکل ہے۔ وہ مختلف جگہوں پر نوکری کرتا تھا اور کچھ لوگوں کے گھروں میں بھی کام کرتا تھا اور جیسے تیسے ان کے گھر کا گزارا ہو رہا تھا۔ وہ عورت بھی اپنے پرانے علاقے کی عورتوں کے کپڑے سلائی کرتی تھی۔ میں چونکہ اس کا خیال رکھتی تھی اس لیے وہ اکثر میرے پاس آنے لگی تھی۔ دن اسی طرح سے گزر رہے تھے۔ پھر کچھ روز سے اسی عورت کی طبیعت عجیب گری گری رہنے لگی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کو بہت زیادہ کمزوری اور نکاہت محسوس ہوتی ہے اور کافی زیادہ چکر بھی آتے ہیں اور اکثر کیا بھی محسوس ہوتی ہے۔ اس کی حالت دیکھنے سے بھی پتہ لگ رہا تھا کہ بہت کمزور اور نڈھال سا وجود ہو گیا تھا اور ایسا لگتا تھا جیسے اس کا خون نچڑتا جا رہا ہو۔ میں نے اس کو مشورہ دیا تھا کہ وہ ڈاکٹر سے اپنا معائنہ کروا لے، تب اس نے میری بات کو گول کر دیا۔ ظاہر ہے ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے پیسہ بھی چاہیے ہوتا ہے۔ جبھی وہ خاموش ہو گئی اور مجھے کہنے لگی، بس باجی، کبھی کبھی ایسے ہی بخار ہو جاتا ہے، اب بھی موسمی بخار ہو رہا ہے، اسی وجہ سے یہ حالت ہے، کچھ دنوں میں بہتر ہو جاؤں گی میں نے بھی زیادہ توجہ نہیں دی اور اپنی نوکری اور گھر میں مصروف ہو گئی۔ پھر کچھ ٹائم سے میرا اس کے ساتھ آمنا سامنا نہیں ہوا، مگر پھر میں نے سنا کہ اس کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی ہے۔ تب میں نے خود اس کو لے جا کر اس کا معائنہ کروایا تو یہ جان کر میری چیخیں نکل گئیں کہ وہ تو حاملہ تھی۔ یہ خبر سن کر میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ وہ تو بیوہ عورت تھی تو وہ حاملہ کیسے ہو گئی؟ وہ بھی منہ کھولے ڈاکٹر کو دیکھ رہی تھی اور پھر اس نے ایک دفعہ دوبارہ سے معائنہ کرنے کا کہا تھا کہ میں بیوہ عورت ہوں تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں بھی بہت زیادہ شوق میں تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ تب ہمارے کہنے پر ایک ڈاکٹر نے دوبارہ سے معائنہ کیا، مگر اب کی بار اس کا لہجہ تھوڑا سخت ہو گیا تھا۔ تبھی اس نے معائنہ کرنے کے بعد کہہ دیا کہ تم حاملہ ہو اور کیسے ہوئی یہ اب تم خود بہتر جانتی ہو، لیکن یہ رپورٹ بالکل ٹھیک ہے، تمہارا بچہ ہونے والا ہے۔ لیڈی ڈاکٹر نے بہت روکھے انداز میں کہا تھا اور اس کی نگاہوں میں اس بیوہ عورت کے لیے کافی شک تھا جو مجھے ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ بیوہ عورت یہ سن کر رونے لگی تھی اور سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ میں بھی حیران پریشان کھڑی تھی، بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر اس سب کی وجہ کیا تھی۔ میرے دل میں نہ چاہتے ہوئے بھی شک جو جنم لینے لگا کہ چاہے جتنی بھی سلام دعا ہو پھر بھی میں اس کو زیادہ جانتی نہیں تھی، مگر میں نے کچھ نہیں کہا کہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور اب مجھے اس کی گری ہوئی طبیعت کی وجہ سمجھ میں آئی تھی، اور وہ یہ بھی کہ میرے معائنہ کرانے والی بات کو گول کر گئی تھی اور جو میرے آگے ہاتھ جوڑنے لگی اور کہنے لگی کہ کسی کو مت بتانا، اللہ گواہ ہے کہ میں نے کبھی کسی مرد کے ساتھ تعلق نہیں رکھا، میں تو اپنے شوہر کی یاد میں ہی رہنا چاہتی ہوں، نہ کبھی کوئی ہمارے گھر آیا ہے، نہ ہی میں کبھی کسی مرد سے ملنے گئی ہوں، اور گھر میں میرے علاوہ میرا بیٹا ہی رہتا ہے، اور میں تو بس اسی وقت ہی گھر سے نکلتی ہوں جب مجھے لوگوں کے سلے ہوئے کپڑے ان کو دینے جانا ہوتا ہے، اور بس کپڑے دے کر اور اپنی رقم لے کر واپس آ جاتی ہوں۔ اس کے علاوہ میرا گھر سے باہر کہیں جانا نہیں ہوتا۔ وہ بے تحاشا رو رہی تھی اور مجھے صفائی دے رہی تھی اور میں چپ چاپ اس کی باتیں سنتی جا رہی تھی۔ مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اصل حقیقت کیا تھی، مگر میں اس معاملے میں بول نہیں سکتی تھی۔ اسی لیے میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، تم اپنی دواؤں کا خیال رکھو، میں کسی کے آگے نام نہیں لوں گی، اور پھر اس کو اس کے گھر چھوڑ کر خود اپنے گھر چلی آئی۔ مگر حقیقت میں میرا بھی سر پھٹنے والا ہو رہا تھا۔ یا تو وہ واقعی انجان تھی اور حاملہ ہونے کے بارے میں نہیں جانتی تھی، یا پھر اب وہ پکڑے جانے پر معصوم بن رہی تھی۔ وجہ جو بھی تھی، مگر سچ یہ تھا کہ وہ اب حاملہ تھی
और इसकी वजह से मैं भी लेडी डॉक्टर की नज़र में मशकूक और ख़राब औरत बनी हुई थी, और यही बात मुझे बहुत बुरी लग रही थी। तभी मैंने इस बेवा औरत से मिलना छोड़ दिया। इसी तरह दिन गुजरते गए। मैंने अपना वादा पूरा किया और किसी के आगे नाम नहीं लिया, मगर ऐसी बातें छुपी नहीं रह सकती, और ये बात भी खुल गई थी, और जल्दी ही पूरा मोहल्ला जान गया था कि वो औरत हामिला है। एक रोज़ बड़ी उम्र की औरत इसके घर गई और जान गई कि वो हामिला है, तो उसने वहीं पर शोर डाल दिया और इसको मलामत करने लगी कि आखिर तुमने किसके साथ ये गुनाह किया है। ना अपनी बेवगी का लिहाज किया और ना ही अपने मासूम बेटे का एहसास किया, और ये भी नहीं सोचा कि तुम्हारा मासूम बेटा इस उम्र में तुम्हारी वजह से मजदूरियां करता है और तुम ये सब कर रही हो। सोचो, अगर इसको पता चल गया तो इसके दिल पर क्या गुजरेगी। तुम्हारी वजह से वो माशरे में सर भी नहीं उठा पाएगा। खुद तो तुम बद किरदार हो, लेकिन तुमने अपने बेटे को भी शर्मिंदगी और जिल्लत में धकेल दिया है। तुमने एक बार भी नहीं सोचा तुम्हारी इस हरकत की वजह से तुम्हारे बेटे की जिंदगी कितनी मुतासिर होगी। वो जो पहले ही यतीम होने की वजह से महरूमियों की जिंदगी गुजार रहा है, और तुम्हारी इस हरकत से शर्म से जमीन में गड़ जाएगा। तुम्हारी वजह से लोग इससे भी दूर भागेंगे और नफरत करेंगे। खुदा तरसी करके पहले तो इसे मजदूरी में कोई रियायत कर दी जाती है, और अक्सर लोग तुम्हारी मदद भी कर दिया करते थे, मगर अब औरतें तुम्हारे साय से भी दूर भागने लगेंगी और जितना मुमकिन हो सकेगा अपने शौहरों को तुमसे बचाने की कोशिश करेंगी, और तुम्हें जो मेहनत मजदूरी का काम मिलता है वो भी बंद हो जाएगा, क्योंकि तुमने इस उम्र में अपने सर में खाक डलवाई और साथ ही साथ अपने बेटे का मुस्तकबिल भी बर्बाद कर दिया। मैं अपने घर के सहन में बैठी हुई थी और अपने स्कूल का काम कर रही थी, जब साथ वाले घर में बेवा औरत की दुहाइयाँ और बुजुर्ग औरत की लानत मलामत वाली बातें बखूबी सुन रही थी, और मैं समझ गई थी कि अब ये जान गई है तो धीरे धीरे पूरा मोहल्ला जान जाएगा। जाहिर है ऐसी खबर छुपी नहीं रह सकती थी। मुझे थोड़ा दुख तो हुआ था, मगर मैंने ज्यादा इस मामले में घुसने की कोशिश नहीं की कि क्या पता मुझे वो सादा और मजलूम लगती है, मगर हकीकत में ऐसा ना हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, मुझे आज याद आया था कि जब मैंने इसको एक दो बार कहा था कि जाके अपना मुआयना करवाए, तो इसने बात को गोल कर दिया था। ये तो उस रोज इसकी हालत मजीद बिगड़ने पर मैं इसको जबरदस्ती लेकर गई थी, और हकीकत खुलकर सामने आ गई तो यकीनन इसका किसी के साथ चक्कर चल रहा था। मुझे इस औरत से सख्त घिन महसूस हुई थी। मैंने ज्यादा इनकी बातें नहीं सुनी और अपना काम करने लगी, और जल्द ही ये खबर पूरे मोहल्ले में आग की तरह फैल गई थी कि वो बेवा होते हुए भी हामिला हो गई है। हर कोई इसको लानत मलामत कर रहा था और इससे मिलना जुलना भी खत्म कर रहा था। सबकी नज़र में वो खुद ही बदकिरदार औरत थी। कोई भी इस पर यकीन नहीं कर रहा था, मगर वो मुसलसल ही इस बात से इनकारी थी और हर किसी को अपनी सफाई पेश करती थी। मगर जान लेने के बाद कोई भी इस पर यकीन नहीं कर रहा था। हर कोई इस पर थू थू कर रहा था और यही कह रहे थे कि जाहिर है पकड़ी गई थी, तभी अब मुकर रही है। और इसी तरह मुसलसल बातें होने पर और इसके पास जा जाकर इसको बुरा भला कहने पर इसके बेटे तक भी ये बातें पहुंच गईं कि इसकी माँ हामिला है और मोहल्ले वाले इसको बुरा भला कह रहे हैं, जिस पर वो बहुत हैरान परेशान सा हुआ और फिर कहने लगा कि मेरी माँ वाकई बेकसूर है, वो गुनहगार नहीं है, मैंने ही इसको हामिला किया है। ये सुनते ही सब औरतों को सांप सूंघ गए और सभी हैरत से मुंह खुले इसको देख रहे थे कि वो 12 साल का लड़का अपनी माँ को हमला कर चुका था। इसकी माँ भी मुंह खोले अपने बेटे की बात सुनने लगी, और इसके बाद ना आओ देखा ना ताओ दोनों हाथों से अपने बेटे को पीटने लगी कि ये इसने क्या कर दिया था। तो लड़का घबराकर रोने लगा और अपनी माँ से कहा कि जो आपको लग रहा है ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बात को समझने की कोशिश करें। फिर जो बात उसने बताई वो सुनकर सब ने दांतों तले उंगलियां दबा ली, क्योंकि वो बात नाकाबिले यकीन थी जो वो लड़का कह रहा था। मगर उसकी बात सुनने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था, क्योंकि वो लड़का सच कह रहा था। उसकी आंखों से सच्चाई साफ नजर आ रही थी। फिर जब उसने सबको तफसील से सारी बात बताई तो सबको यकीन हो गया कि वो औरत वाकई शरीफ और बेगुनाह थी। इसीलिए सभी औरतें शर्मिंदा हो गईं और इस औरत का ख्याल करने लगी। फिर कुछ ही वक्त बाद जब औरत का बच्चा पैदा हुआ तो ये देखकर सबकी चीखें निकल गईं, क्योंकि वो बच्चा तो इंसान को बाज दफा ऐसे हकाइक पता चलते हैं कि जिनको सुनकर ही औसान खता हो जाते हैं, और हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। इस दुनिया में क्या कुछ हो रहा है और हम लोग यकसर अनजान होते हैं,
और लापरवाही और गफलत से जी रहे होते हैं। आजकल हर जगह बहुत से गलत काम हो रहे हैं, मगर इनकी रोकथाम का कोई भी सिलसिला नहीं किया जा रहा। हुकूमत इस बारे में कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं। इनको तो बस अपने बैंक अकाउंट भरने होते हैं। माशरे में क्या हो रहा है और कौन कितना बड़ा नुकसान कर रहा है, इससे हुकूमत को कोई सरोकार नहीं, और हुकूमत की गफलत की वजह से माशरे में बहुत सी बुराइयां फैलती जा रही हैं और लोग तेजी से तबाही के धाने की तरफ जा रहे हैं। ऐसा ही कुछ मेरी नज़रों के सामने से गुजरा था, जिसने मुझे बुरी तरह हिलाकर रख दिया था। मैं एक सरकारी स्कूल की उस्तानी थी। मेरा शौहर बैंक में मुलाजिम था। मैं पहले ससुराल के साथ रहती थी, लेकिन फिर जल्दी मैंने अपने स्कूल के पास ही एक छोटा सा घर खरीद लिया था। एक तो ये कि मुझे स्कूल आने जाने में आसानी हो, और फिर दूसरा ये कि अलग घर होने का अपना मज़ा होता है। बंदे अपने तरीके से अपने घर को चलाता है, वरना तो ससुराल वालों के साथ मजबूरन बंद कर रहना पड़ता है और ना चाहते हुए भी इन्हीं के तौर तरीके से चलना पड़ता है। मैं नौकरी वाली थी और ऐसे में मुझे अपने ससुराल वालों के साथ चलने में बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आ रही थी। वो चाहते थे कि मैं नौकरी के साथ साथ अपने घर की जिम्मेदारी भी पूरी करूं, मगर अब जब से घर अलग हुआ था तो मुझे बहुत आसानी हो गई थी। मैं आराम से किसी भी वक्त अपने घर का काम समेट लेती थी। मेरे घर के बिल्कुल साथ वाले घर में एक बेवा औरत रहती थी। उसका 12 साल का बेटा था। उसके शौहर का 3 बरस पहले ही कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था और तब से इस पे मुश्किल वक्त आन पड़ा था। इसने मुझे बताया था कि किस तरह अपने शौहर की ज़िंदगी में वो ऐश की ज़िंदगी गुजारती थी और अपने शौहर की मनपसंद बीवी थी, और इसका शौहर इसका बहुत ख्याल रखता था जब इसको ज़िंदगी की हर आसाइश मैसर थी। मगर फिर अचानक कार एक्सीडेंट में इनका इंतकाल हो गया, और जैसे वो इस दुनिया से जाते हुए इस घर का सारा सुकून और सारी अय्याशी भी अपने साथ ही ले गया था। इसका शौहर मरते हुए इसके घर में मुश्किलों ने डेरा डाला था, और इसका ससुराल जो पहले ही इसको पसंद नहीं करता था, अपने बेटे के इंतकाल के बाद उन्होंने बिल्कुल ही किनारा कर लिया था। इसके शौहर की चूंकि प्राइवेट नौकरी थी, इसलिए पेंशन वाला भी कोई रास्ता नहीं था, और इसके मैके में भी ऐसा कोई नहीं था जो इसके सर पर हाथ रखता और इसके मुश्किल में इसके काम आता। माँ बेटे पर जैसे आजमाइशों ने डेरे डाल लिए थे, और इसका बेटा जो स्कूल का बेहतरीन स्टूडेंट था, मजबूरन घर में फाके होने की वजह से अपनी सारी तालीम छोड़कर मेहनत मजदूरियाँ करने में लग गया। और वो औरत भी अपनी सारी अय्याशियाँ भूलकर लोगों के कपड़े सीने लगी थी। वो भी इससे पहले कहीं किसी और इलाके में रहने वाली थी, और वहाँ के लोग इसकी बेहतरीन सिलाई से वाकिफ थे। इसीलिए वो अब शौहर के इंतकाल के बाद फिर से कपड़े सिलवाने लगे थे, और बेवा औरत अपने कस्टमर बरकरार रखने के लिए इनके कपड़े खुद ही जाकर ले आती थी और सिलाई करके इनको दे भी आती थी। इस तरह वो लोग भी खुशी खुशी इसको अपने कपड़े देते थे, क्योंकि इस तरह इनको आने जाने की झंझट से भी आज़ादी मिल जाती थी। इनकी बीवियां बड़ी औरतें थीं और छोटे से मोहल्ले में आते हुए घबराती थीं। इसी तरह घर बैठे बिठाए वो इसे काम समझा देती थी, और वो भी इनके कपड़े सिलाई करके इन तक पहुंचा देती थी और अपनी मेहनत वसूल करने के बाद लौट आती थी। इसी तरह इसका बड़े बड़े घरों में आना जाना लगा रहा था और जिंदगी का निज़ाम चल रहा था। और फिर मैं भी अपने कपड़े सिलवाने शुरू कर चुकी थी, और मोहल्ले की बाकी लोगों को भी कहा कि अपने कपड़े इनसे सिलवाएं, क्यों सभी इसके पास आने जाने लग गए थे। और फिर कुछ वक्त गुजरने के बाद इस बेवा की हालत गिरी गिरी रहने लगी थी। पहले तो इसने बुखार और मामूली तबीयत खराबी का बहाना बनाया, टाल मटोल से मुझे काम कर लेती रही, मगर मैं समझ गई थी कि पैसे की तंगी की वजह से अपना इलाज नहीं करवा रही थी। एक रोज़ मैं ज़बरदस्ती इसको अपने साथ जानने वाली एक लेडी डॉक्टर के पास ले गई, ताकि इसका अच्छे से मुआयना हो जाए, क्योंकि इसकी सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही थी और कुछ माह में ही इसकी हालत ऐसी हो गई थी जैसे वो हड्डियों का ढांचा हो। इस वजह से मैंने इसका मुआयना कराना ज़रूरी समझा, और जब मैंने इसका मुआयना करवाया तो ये जानकर मेरे होश उड़ गए थे कि वो औरत हामिला थी। ये खबर बहुत हैरान कुन थी, क्योंकि वो तो बेवा थी और इसका शौहर 3 साल पहले इस दुनिया से जा चुका था। फिर वो हामिला कैसे हो सकती है? अब लेडी डॉक्टर जो मेरी जानने वाली थी, वो भी मुझे और इस औरत को मशकूक नज़रों से घूर रही थी, और मेरे मिन्नत करने पर दोबारा चेक किया और दोबारा भी यही बताया कि ये हामिला है, तो मैं शदीद शौक में आई थी। वो औरत रोने लगी और मेरी मिन्नतें करने लगी कि मैं ये बात किसी को ना बताऊं। साथ ही सफाइयाँ भी पेश करने लगी कि वो ऐसी औरत नहीं है, ना वो किसी को जानती है, मगर ये मानना आसान नहीं था कि बिना मर्द के वो हामिला हो गई।
मगर मैंने इससे वादा किया कि मैं इसकी ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। लेकिन इसके साथ ही मैंने अपनी नौकरी का बहाना करके इससे मिलना जुलना भी कम कर दिया था। मेरे दिल में भी शकूक व शुबहात जन्म ले रहे थे, तभी मेरा दिल नहीं करता था कि मैं इस औरत से मिलूं। कुछ वक्त ऐसे ही खामोशी से गुजर गया। फिर एक रोज़ मोहल्ले की एक बुजुर्ग खातून इस औरत के पास गई और इसकी हालत देखी तो चौंक गई और इसको गौर से देखने लगी। वो अपने वक्त की दाई रह चुकी थी। तभी गौर करने के बाद इस औरत ने अपने गाल पीट लिए और इसको गालियां देते हुए बोलने लगी कि तुम तो माँ बनने वाली हो और तुमको शर्म ही नहीं आई कि ये काम कर लिया। बेवा थी, अपने मरे हुए शौहर का ही ख्याल कर लिया होता। अगर इतना ही शौक था इस सब का तो दूसरी शादी कर ली होती। कम अज कम इस गुनाह से तो बच जाती। तुम्हारे इस गुनाह और गंद फैलाने से तुम्हारे बेटे की जिंदगी पर कितना बुरा असर पड़ेगा, तुमने सोचा भी नहीं। और भी इसने खूब बातें की और इस बेवा को गालम गलोच भी करने लगी थी और ये भी कहा था कि लानत है हम सब पर जो हम तुम्हारा ख्याल रख रहे थे, इसीलिए तुम मजलूम औरत हो। मगर हम नहीं जानते थे कि तुम ऐसी औरत निकलोगी। पता होता तो तुम पर थूकते भी नहीं और ना ही तुमको इस मोहल्ले में रहने देते। तुम्हारी वजह से पूरा मोहल्ला बदनाम हो जाएगा। मैं इस वक्त अपने घर के सहन में बैठी अपने स्कूल के जरूरी काम कर रही थी जब साथ वाले घर से शोर उठा और मैं बखूबी इस बुजुर्ग खातून की बातें सुन सकती थी जो वो इस बेवा औरत को गालम गलौज कर रही थी और सारी बातें कह भी रही थी। और इसके साथ इस बेवा औरत की रोने की और सफाइयां पेश करने की आवाजें भी आ रही थी। मुझे ये सब सुनकर अफसोस तो बहुत हुआ, मगर क्या कह सकते थे। उसने गुनाह किया था और अब इस गुनाह का खमियाजा इसे ही भुगतना था। उसने खुद सोचना चाहिए था कि वो ये काम कर रही है तो इसको ये बातें भी सुननी पड़ेंगी। मुझे तो रह रह कर इसके बेटे पर अफसोस हो रहा था जो छोटी सी उम्र से ही अपनी माँ के करतूतों की वजह से लोगों की बातें सुनेगा और जिल्लत महसूस करेगा। कुछ लड़के तो इतने जज्बाती होते हैं कि ऐसी बातें सुनकर अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मुझे सोचकर ही बहुत दुख महसूस हो रहा था, मगर अफसोस कि इसकी माँ ने अपने बेटे का एहसास भी नहीं किया और ऐसे काम करने लग पड़ी। देखा जाए तो इस बुजुर्ग खातून की बात दुरुस्त थी। उसे अपने शौहर के गम में डूबे रहने का ड्रामा करने की बजाय दूसरी शादी कर लेनी चाहिए थी। इस्लाम में भी इसकी कोई ममानियत नहीं है। कम अज कम इस गुनाह से बच जाती और ना ही लोगों में बदनामी होती। वो काम जो उसने हराम तरीके से किया था इसे जायज हलाल तरीके से भी कर सकती थी, तब इसे कोई कुछ कहने वाला भी ना होता। मगर इसने खुद ही गलत रास्ता चुना था और फिर देखते ही देखते पूरे मोहल्ले में ये बात फैल गई। सब ही इसको बुरा भला कहने लगे थे और इसको लान तान करने लगे और इसके घर भी आना जाना छोड़ दिया। बस आते जाते इसको बातें सुनाते थे। फिर कुछ औरतें इसके पास गईं और इसको लान तान करने के बाद कहने लगी कि तुम अपना बच्चा खत्म करवा लो, कम से कम तुम्हारा बेटा जिल्लत से बच जाएगा जो तुम इसको देने वाली हो। इसका बेटा भी इस वक्त घर में मौजूद था और ये बातें सुनकर चौंक गया और फौरन से इनके पास आया और कहने लगा कि ये आप सब क्या कह रही हैं। मेरी माँ बुरी औरत नहीं है, वो नेक औरत है और कुछ भी गलत नहीं कर सकती। तब इसकी बात पर मोहल्ले की कुछ बदलिहाज औरतों ने कह दिया कि तुम्हारी माँ बच्चा पैदा करने वाली है और ये गुनाह है। इस बात पर वह लड़का कुछ लम्हे को तो चुप हो गया। अपनी माँ को कितनी देर तकते रहने के बाद वो सर झुकाकर धीरे से बोला, अब मैं समझ गया हूँ, मैं सारी कहानी समझ गया हूँ। ये सब मेरी गलती है, मेरी माँ मेरी वजह से हामिला हुई है। और इसकी बात सुनकर सारी औरतें चौंक गईं और उंगलियां दांतों तले दबा ली और हैरत से इस लड़के को देखने लगी कि वो ये क्या कह रहा है कि उसकी माँ भी, जो पहले हैरत और सदमे से गंग बैठी थी, अचानक से अपने बेटे पर झपटी और दोनों हाथों से इसको पीटने लगी कि नामुराद ये तुम क्या कह रहे हो, तुमने क्या कर दिया। तो लड़का रोने लगा और कहने लगा, माँ मेरी बात सुनो, मैं कुछ बताता हूँ। फिर इसने बताया कि कुछ वक्त से वो एक क्लिनिक में काम कर रहा है। इस क्लिनिक के डॉक्टर ने इसको अच्छा मुआवजा देने की बात की थी। जब भी वो सारे काम छोड़कर वहीं पर काम करने लग गया। वो दवाइयाँ बनाता है और फिर इन पर टेस्ट करता है। माँ को एक रोज बुखार था, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। तब मैंने इसको जाकर कह दिया कि अगर बुखार की कोई दवाई इसके पास है तो वो मुझे दे दे, मेरी माँ की हालत खराब है। मेरी बात पर वो डॉक्टर जो एक दवाई पर टेस्ट कर रहा था, सुनकर इसने जैसे कुछ सोचा और फिर मुझे एक इंजेक्शन दिया कि ये अपनी माँ को जाकर लगा दो, इसकी अंदरूनी सारी कमजोरियां दूर हो जाएंगी और वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हाँ, इसको शुरू शुरू में कुछ तकलीफ होगी और चूंकि वो अनजान है
कि तुम्हें क्लिनिक में काम करते हो, इसलिए वो तुमको इंजेक्शन नहीं लगाने देगी। लिहाजा जब वो सो रही हो तो सोते हुए इसको खामोशी से इंजेक्शन लगा देना। फिर देखना वो दिनों में ही भली चंगी हो जाएगी। और मैं जो हर सूरत अपनी माँ की तबीयत खराबी की वजह से परेशान था, डॉक्टर की बात सुनकर खुश हो गया और इंजेक्शन ले आया। और जब रात को मेरी माँ सो गई तो मैंने छुपकर वो इंजेक्शन अपनी माँ को लगा दिया। और मेरे ख्याल में तो मेरी माँ कुछ ही रोज़ में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और चूंकि इस डॉक्टर ने मुझे पहले ही कहा था कि तुम्हारी माँ पहले थोड़ी तकलीफ उठाएगी, इसलिए मैं बेफिक्र रहा कि डॉक्टर का दिया हुआ इंजेक्शन काम करने लग गया है और जल्द ही मेरी माँ ठीक हो जाएगी। और अब मुझे एहसास हो रहा है कि इस जालिम डॉक्टर ने हमारी बेबसी का फ़ायदा उठाकर अपने किसी केमिकल का तजर्बा करने के लिए मेरी माँ को और मुझे इस्तेमाल किया। और अब मैं समझ गया हूँ कि ये बच्चा भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। वो लड़का रोते रोते सब कुछ बता चुका था। सब औरतें हैरत से एक दूसरे का मुंह देखने लगी थी। कुछ ने तो कहा था कि वो लड़का अपनी माँ के करतूतों पर पर्दा डाल रहा है, मगर मोहल्ले की समझदार औरतों ने इस लड़के की आंखों में सच्चाई जान ली थी और कहा कि वो सच कह रहा है। और इसके बाद इसकी माँ का ख्याल रखने लगी। और जब बच्चा पैदा हुआ तो ये देखकर सबकी चीखें निकल गईं, क्योंकि वो बच्चा अजीब था। इसका चेहरा इंसानों वाला, बाकी का धड़ अजीब था, जैसे किसी और सयारे की मखलूक हो, और इंसानी बच्चा था ही नहीं। ना जाने क्या चीज़ थी। सब बहुत हैरत से इस बच्चे को देख रहे थे। और फिर लड़के की बात पर सबको यकीन आ गया कि वाकई इस डॉक्टर ने तजर्बा किया था। फिर सब मोहल्ले वालों ने मिलकर इस डॉक्टर पर केस का कर दिया ताकि इसका घिनौना काम खत्म हो जाए और किसी और को नुकसान ना पहुंचे। इस डॉक्टर का सजा हो चुकी थी। औरत हर वक्त रोती रहती थी कि इसके यहाँ ऐसा बच्चा पैदा हुआ, मगर शुक्र है कि खुदा ने इस पर ज्यादा आजमाइश नहीं डाली थी। कुछ ही वक्त बाद इस बच्चे का इंतकाल हो गया। मैं इससे बेहद शर्मिंदा थी, क्योंकि मैंने खुद भी इसके बारे में ना जाने क्या कुछ गलत सोचा था। इसीलिए जाकर इससे माफ़ी मांग ली और दोबारा से इससे मिलना जुलना शुरू कर दिया। मगर मैं अभी तक अपना दिल में नदामत महसूस करती हूँ कि इस मुश्किल वक्त में मैंने इस औरत पर यकीन नहीं किया था।